Hello, viewers. Welcome to Crosstalk India. My name is Chetan Kumar, and today we have an exceptional personality with us. He is currently a lawyer, a social activist, and the person who wants to contribute to his country and moreover to the nature. Today we have Mr. Ankur Gupta, sir. Thank you so much for coming into Crosstalk India. Highly obliged and thank you very much. It's an honor to be with you here. So let's start with our today's podcast. It's about your life and what you are currently pursuing. So my main question is, please introduce yourself to our viewers. Yes, my name is Ankur Gupta. Right now, I am pursuing as an advocate, and as far as my family background is concerned, I have my one baby, 6-year-old, my wife who is housewife, my father who is retired from a UCO bank as a chief manager, and my mother who is also a housewife. So I'm an activist basically, and I am pursuing and doing a welfare work for the betterment of society, as well as my main aim is to protect the democracy, because right now you will see that democracy is going to be a main punch. Many people are going to punch a democracy. Yeah. But my main aim is to make a moral values high so that democracy should be protected, and the values which our constitution gives us, and the youngsters or the youth who are pursuing in colleges or at school level, they must respect our country, they must respect our national flag, they must respect our constitution. So my main objective is that. Okay. So it will be a huge uplift for us for our channel because we are with youth today. And first of all, I would like to ask about your education. So where did you completed your schooling and your graduation? So I started my school from Bhavans SL Public School till 8th class. Then I do my higher education till up to 10th in Ramashram Public School. Then again plus 2 at Ramashram School. Then I did my BSc Medical at DAV College, Hathigate. Then MBA from Global Institute of Management. And in 2021, I started my law from Doon College of Law. So completed my law degree in 2024. सो ये तो मतलब कि बहुत बड़ा चेंज है कि पहले आपने बीएससी बायोटेक देन Yes. टू एमबीए देन लॉ आपको क्या एक तो ये सडन चेंज है तो ये क्यों और आपने फिर लास्ट में ये क्यों चूज किया कि हाँ मेरे को लॉ में जाना चाहिए देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हेन आई स्टार्टेड माय बीएससी मेडिकल फ्रॉम डीएवी कॉलेज हाथीगेट, तो उस टाइम बायोटेक नई नई आई थी, तो देयर इज अ ह्यूज स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी उस टाइम में 2005 2005 to 8. ओके ठीक है, तो व्हेन आई कंप्लीटेड माय बायोटेक फ्रॉम डीएवी कॉलेज हाथीगेट, उसके बाद मतलब कि हमने सोचा कि मैनेजमेंट का एक अच्छा स्कोप है, बिकॉज आई वांट टू डू डिफरेंट थिंग्स कि मुझे ह्यूमन रिसोर्सेज का और मैनेजमेंट की मार्केटिंग का बहुत ज्यादा, जिसको हम कहते हैं कि शौक था, बिकॉज आप कोई भी इंडस्ट्री देखेंगे ना, उसकी जो बैकबोन होती है वो मार्केटिंग होती है। किसी भी इंडस्ट्री की आप बैकबोन लगा लो, बिकॉज मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपनी पूरी की पूरी इंडस्ट्री की सैलरीज जो है, अप टू द वाइस चेयरमैन, अप टू द एसबीयू हेड, उसकी हर बंदे की जो सैलरी है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट निकालता है। तो मुझे था कि एक मार्केटिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जिसको मैं डीप जाना चाहता था, जिसकी डीप स्टडी करना चाहता था, ताकि ये चीज पता चल सके, बिकॉज हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी चीज है वो मार्केटिंग से ही चलती है, लेकिन उसको स्टडी करने के लिए मुझे एमबीए करना था। इसलिए मैंने मतलब कि बीएससी बायोटेक टाइम मेडिकल के सब्जेक्ट भी पढ़े और बायोटेक के भी पढ़े। ठीक है, बिकॉज आई डिड बायोटेक वोकेशनल, उसमें मेडिकल के सब्जेक्ट भी थे और बायोटेक के भी थे। उसके बाद जब एमबीए की तो हमने मैनेजमेंट पढ़ ली, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पढ़ लिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया, कॉर्पोरेट लॉ पढ़ लिया, ह्यूमन रिसोर्स पढ़ लिया, ठीक है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ ली, ऑपरेशनल रिसर्च पढ़ लिया। और 2021 में जब हम एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, और उस टाइम मैंने सोचा कि अभी जरूरत है, अगर लोगों का ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है तो वी शुड गो थ्रू टू द लॉ। तो उसके बाद लॉ मैंने जब 2021 में एज अ जोनल सेल्स हेड नॉर्थ, मैं फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन में था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी पोस्ट थी। तो मैंने जब 2021 में
अपना 14 साल का सफर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का तय करके फार्मास्यूटिकल्स को छोड़ा एज अ जोनल सेल्स हेड नॉर्थ, जिसमें मैं पंजाब, हरियाणा, J&K, राजस्थान, दिल्ली और आधा यूपी 6 स्टेट्स को कवर कर रहा था। तो जब मैंने मतलब कि मेरे अंडर 50 बंदों की टीम थी, जिसमें एरिया मैनेजर्स, रीजनल मैनेजर्स, मेडिकल रैप्स वो थे। तो जब मैंने वो छोड़ा तो मुझे स्टडी का शुरू से शौक रहा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना स्टडी को फिर से कंटिन्यू किया जाए। तो अगर पॉलिटिक्स में है तो वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, वी शुड लर्न अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ सिविल लॉ, डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो मैंने ज्यूरिस्प्रूडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना जरूरी समझा। तो अभी देखो लॉ की स्टडी भी कंप्लीट हो गई। तो अभी मैंने मतलब कि लोगों के कई जगह ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए अपनी जो लॉ की डिग्री की, उसमें मैंने उसका पूरा यूटिलाइज किया और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी आपने देखा होगा कि पुलिस का एक स्कफल हुआ था आबादी करमपुरा में पिछले साल, मतलब कि 6-7-8 महीने पहले 2025 में। ठीक है, तो उसमें जो मतलब कि लोग थे जिनके ऊपर मजीठा रोड पुलिस स्टेशन ने तशद्दद किया था, 17 बंदों के ऊपर एफआईआर लॉन्च की 307 की। ठीक है, तो मैंने वो 17 बंदे जो हैं वो बेल आउट कराए, जिसमें वो पुलिस का कलर ऑफ चेयर को मिसयूज कर रहे थे। और उन्होंने कहा था कि जो पंजाब गवर्नमेंट का युद्ध नशा विरुद्ध एक कैंपेन चल रही थी, जो बहुत अच्छी कैंपेन थी, युद्ध नशा विरुद्ध, पुलिस ने उसका मिसयूज करना चाहा। आपके हिसाब से क्या पुलिस या फिर गवर्नमेंट भी लॉज का मिसयूज कर रही है आम आदमी के खिलाफ? देखो लॉ का हमेशा ही मिसयूज बहुत ज्यादा हद तक हुआ, गवर्नमेंट्स ने किया। देखो मैं तो यही कहूंगा कि ये जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जैसे अभी आप देख रहे हैं इन्फोर्समेंट एजेंसी, चाहे सीबीआई लगा लो, चाहे आप ईडी लगा लो, चाहे आप विजिलेंस लगा लो, मतलब कि इनका जो मेन काम है, मेन काम को छोड़ के इनका कई जगह मिस यूज भी हुआ। अदरवाइज आप ये बताओ कि जिस बंदे के ऊपर सीबीआई या ईडी ने या विजिलेंस ने अपना रेड किया हो, वो बंदे उनके स्कफल से कैसे बच गए? नहीं बचने चाहिए। ठीक है, तो अगर लोग बचते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल गेम भी खेली जाती है। तो जबकि ये एजेंसीज जो हैं, ये एक इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, तो इनका जो मेरे आइडिया से है, जो यूज है, वो बिल्कुल असल में सही डायरेक्शंस में होना चाहिए। मतलब पॉलिटिशियंस का मिसयूज करते हैं। बिल्कुल मिसयूज होता है सर इसका, बिल्कुल इसका मिसयूज होता है। यहाँ तक कि अभी हमने लॉ की जुडिशरी का भी हाई लेवल पे मिसयूज होता है। ओके। जुडिशरी का भी, ये तो हमारे सब्जेक्ट्स में भी लिखा होता था कि मतलब कि ये बिल्कुल ना समझा जाए कि हर बंदा इसमें ऑनेस्ट है। तो इस जुडिशरी का भी हर जगह, कई जगह, और आज की डेट में देखो आईटी सेक्टर इतना बढ़ गया है। अभी मैं आपको मिलने से पहले एक आईटी कंपनी के साथ ही मेरी मीटिंग थी, तो मेरी भी उनके साथ ये डिस्कशन हो रही थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के कारण क्या हमें फायदा असल में हुआ कि हमें असल में नुकसान हुआ। बिकॉज जब हम एमबीए में थे तो मुझे याद है हमें असाइनमेंट्स मिलते थे जिसमें ब्रेन ड्रेन होता था, हम खुद अपना दिमाग यूज करते थे। 5 बच्चों ने बैठना, टीम बननी, चार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट बनाने, और चार्ट्स पे टीम का नाम रखा जाता था, ग्रुप डिस्कशन होती थी। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के ऊपर आपकी मेंटल असेसमेंट्स होती थी। लेकिन आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के कारण आप देखो, आपके मोबाइल्स ने, आपकी टेक्नोलॉजी ने आपके ब्रेन को या आपको गुलाम बना लिया। आप जो कुछ सोच रहे हो वही वीडियोस आपके मोबाइल में आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आज की डेट में ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। मतलब एक प्रिवेसी इन्वेड हो रही है, प्रिवेसी इन्वेजन हो रहा है। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो ये तो एक यूनिवर्सल सच है सर, कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे क्राइम करने की सिचुएशंस भी बढ़ेंगी। बिकॉज टेक्नोलॉजी ही कहीं ना कहीं क्राइम को, हम ये कह सकते हैं कि वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो ओनली ड्यू टू टेक्नोलॉजी। आपके ग्रेजुएशन के टाइम पे जो क्राइम था तब आपके हिसाब से तब ज्यादा इन्फोर्समेंट तब सही थी, लेकिन आज भी इतना एआई अब तो है, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट को या फिर पुलिस को भी उतना टाइम लग रहा है क्रिमिनल को कैच करने में। तो क्या हम आगे बढ़े हैं या फिर हम भी अभी भी वहीं पे खड़े हैं? हम सर अभी भी वहीं पे खड़े हैं। उसका रीजन वो है कि जब हम डीएवी कॉलेज में थे, जहाँ प्रेसिडेंटशिप भी की है, तब कल्चर बिल्कुल अलग था। तब थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर को बच्चे अडॉप्ट करते थे, लेकिन उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान रहता था। मैं तो आज भी एज एन एक्टिविस्ट पेरेंट्स को कहता हूँ कि जब भी बच्चे घर से जाएं या जब भी रात को घर पे आए, उनकी टांगों और उनकी आंखों को जरूर चेक करो। ठीक है, लेकिन अब हो ये गया कि अब हम थोड़ा सा इतना एडवांस हो चुके हैं
ना तो जब पेरेंट्स चेक करते हैं बच्चों को, और बच्चों ने भी टेक्नोलॉजी इंक्रीज होने के कारण इतने सोर्सेज अपनी स्टडी करते करते बना लिए हैं कि पेरेंट्स को भी नहीं पता चलता कि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आ रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा, जिसको हम कह देते हैं कि कारण है, कि जिसके कारण आज की डेट में सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया। हमारे टाइम पे क्या होता था, अगर हम पढ़ते थे तो कुछ भी पैसे लेने तो वो पेरेंट्स से ही लेते थे। तो आज की डेट में आईटी के बढ़ने के कारण तो आप ये देखो कि बच्चे स्टडी करते करते ही कमाना शुरू कर देते हैं, और उनके सोर्सेज भी इतने, और साथ में वो आज की डेट में वो जो मल्टी चेन बिजनेस चले हुए हैं, वो ऐसे चले हुए हैं कि आप मेंबर्स बनाई जाओ और उसमें भी फंस रहे हैं बच्चे। जैसे पीछे एनएफटी करके या ऐसे करके ऐसे, जिसके कारण साइबर फ्रॉड्स जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो मैं बच्चों को भी ये मैसेज दूंगा कि ये शॉर्टकट्स में बिल्कुल ना बढ़ो। जब स्टडी कर रहे हो तो स्टडी की तरफ ध्यान दो, उसके बाद जब पैसा कमाओगे तब जॉब करोगे तब उसकी तरफ ध्यान दो। सो लेट्स गेट बैक टू योर ग्रेजुएटिंग डेज। आपको इसकी मेमोरीज दिलवाते हैं। सो उस टाइम पे आप 2007 में आप प्रेसिडेंट बने डीएवी कॉलेज। जी। उस टाइम पे आपको मतलब ये था कि मेरे को पॉलिटिक्स में थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए, या कुछ गलत हो रहा था इसलिए आपने वो प्रेसिडेंटशिप चुनी? देखो, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही उस टाइम पे हो गया था। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे, वो हमारे एक प्रोफ़ेसर होते थे यहाँ, परवीन सर होते थे केमिस्ट्री के। ओके। ठीक है? तो उनकी मतलब कि एक डेथ हुई थी, मतलब कि एक मतलब आप समझ लीजिए सुसाइड केस ही था। ओके। तो उन्होंने, उनकी जब डेथ हुई तो उस टाइम डीएवी कॉलेज ने दरवाज़े बंद कर लिए थे, चाहते तो कॉलेज उस टाइम उनको बचा सकता था। ठीक है? वो गोल्ड मेडलिस्ट थे ओके। केमिस्ट्री के। तो उस टाइम पे मैं उनसे, वो हमारे टीचर भी थे और मैं उनसे ट्यूशन भी पढ़ता था, तो वी आर वेरी इमोशनल फेलोज़। स्कूल टाइम ऐसा होता है कि आप बड़े इमोशनल होते हो अपने टीचर के साथ। तो उस टाइम पे एक सिचुएशन ऐसी हुई कि जब कॉलेज की तरफ से कुछ मतलब कि ये नहीं किया गया, कॉलेज के गेट के बाहर ही उनका डेथ हुआ था। तो उस टाइम पे हमने काफ़ी ज़्यादा एजिटेशन की थी। वाज़ दैट अ मर्डर और सम और वो कुछ ऐसा उनके इन-लॉज़ के साथ कुछ इश्यू था, तो उनकी पहले वाइफ़ का हुआ डेथ, उसके बाद जो वो गैस्ट्रिक लीवर आई था, उन्होंने वही ड्रिंक करके कॉलेज आ गए, और ओके। कॉलेज के गेट पे ही उनको जो ज़हर था गैस्ट्रिक लीवराज का, उसके कारण उनका डेथ हुआ। तो मतलब कि वो चाहते तो उस टाइम कॉलेज मैनेजमेंट उनको कर सकती थी। तो उस टाइम हमारा एक स्टूडेंट लाइफ होती है, तो हमने काफ़ी एजिटेट किया कॉलेज के मतलब कि मैनेजमेंट के खिलाफ। तो जब एजिटेट किया तो तब मतलब कि हमने हॉल गेट भी बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था। ओके। तो स्टूडेंट्स ने सभी ने मिलके, कॉलेज के सभी स्टूडेंट मिलके, जब अब आगे एक बंदा लगता, तो मैं थोड़ा प्रोएक्टिव था, मैं आगे लग गया। तो स्टूडेंट सभी साथ थे, तो उस टाइम तो मीडिया का पता नहीं हमें होता था, तो अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे सभी न्यूज़पेपर्स में, सारे मीडिया में मेरी मतलब कि न्यूज़ आ गई। न्यूज़ आने के कारण मतलब कि कॉलेज मैनेजमेंट ने भी मेरे साथ मतलब कि क क स्टार्ट कर दिया कॉरेस्पॉन्डेंस, और मीडिया ने भी कॉरेस्पॉन्डेंस स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पे दिक्कतें क्या आई थी उस टाइम पे, उस अगर मैनेजमेंट की तरफ से? उस टाइम मैनेजमेंट की तरफ से सर ये दिक्कत आई थी कि उनका बच्चा एक छोटा था। तो हमें ये था कि अब मतलब उनके मदर की भी डेथ हो गई, और हमने एक एसेट गँवाया था। वो एसेट थे हमारे, मतलब कि गोल्ड मेडलिस्ट थे, एसेट थे वो। तो एसेट गँवाने के कारण हमें ये हुआ कि उनके बच्चे को डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमिटी थ्रू आउट स्टडी जो है, वो फ्री करवाए। तो हमने उस टाइम पे, प्रोफेसर वीके शर्मा प्रिंसिपल होते थे यहाँ डीएवी कॉलेज में। चलो, उन्होंने हमारी बातें भी मानी, उन्होंने मैनेजमेंट के साथ बात भी की। तो जो वो बेस्ट पॉसिबल कर सकते थे, तो उसके बाद हुआ भी। वो मतलब कि उन्होंने एश्योरेंस भी देखी, वी विल डू बेस्ट पॉसिबल, क्योंकि बच्चा उस टाइम पे 2 साल का था, 3 साल का भी नहीं था उनका। तो अब तो वो शायद काफ़ी बड़ा हो गया होगा। तो हमने उस टाइम उनकी मतलब कि जब ये की, तो उसके बाद एक वो टैग लग गया, आप समझ लो कि न्यूज़पेपर में, कि प्रेसिडेंट अंकुर गुप्ता ने ये मतलब कि प्रोटेस्ट किया, एक हाईलाइट हो तो गया। हाईलाइट हो गया। उसके बाद फिर थोड़ा मतलब कि पॉलिटिशियंस के साथ भी आहिस्ता-आहिस्ता मतलब कि रिलेशन डेवलप हुए, क्योंकि हमने उस टाइम पे एफआईआर दर्ज करवाई थी उनके लाश के, यहाँ उनका जो शरीर था हमने हॉल गेट में रख दिया था। ओके। और हॉल गेट रख के, क्योंकि उस टाइम पे जो इनके लाश थे, जो उस टाइम पे हम तो बच्चे थे, जो सुनने में आता कि उस टाइम पे अकाली दल की गवर्नमेंट थी और के लाश के काफी अच्छे रिलेशन थे, तो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। ओके। तो हमने तो मतलब कि उनका जो सुसाइड नोट था उस पे लिखा हुआ था कि जिन हाथों ने सारी उम्र चौक या डस्टर पकड़े हो, वो हथकड़ियां नहीं सह सकती। तो उनकी ये जो सुसाइड नोट में हमने ये उनका लाइन पढ़ी, तो वी आर वेरी इमोशनल। वो देख के तो हमने कहा कि अब जो मर्जी हो जाए, तो हम मतलब कि संस्कार तब करेंगे जब मतलब कि हमें इंसाफ मिलेगा परिवार को। तो उस टाइम पे मतलब कि आप समझो कि मेरा 88 का बर्थ है, तो ये बात है 2007 की, तो अब ये 7 या 8 की बात है। 19-20। हाँ, तो आप समझ लो कि 18-19 साल एज थी मेरी उस टाइम पे, है ना।
तो लेकिन उस टाइम हमने फिर मतलब कि इंसाफ लिया, मतलब कि FIR हमने दर्ज करवाई। फिर उसके बाद सेकंड हमारा जो पड़ाव था वो मैनेजिंग कमेटी के साथ था, DAB, वो भी चला। वो भी हमने राइटिंग में उस टाइम पे जो कर सकते थे, वी शुड डू अवर बेस्ट है। तो उसके बाद फिर सभी स्टूडेंट्स ने कहा कि अंकुर, अगर इतने हमने प्रशासन के साथ भी लड़ाई लड़ी और मैनेजिंग कमेटी के साथ भी, DAB के साथ लड़ाई लड़ी, तो अगर इंसाफ ये लिया तो आप आगे लगो, वी ऑल आर विद यू, तो आप प्रेसिडेंट खड़े हो जाओ कॉलेज के। तो उस टाइम हमने बड़े एमिकेबली मतलब कि बच्चों के राइट्स रखे। जैसे DAV कॉलेज में बच्चों को जब रोल नंबर मिलता था तब काफी फाइन डल जाता होता था, ठीक है, और कई चीजें होती थी। तो वो हमने मतलब कि जैसे पार्किंग इश्यूज भी थे, ठीक है, और बच्चे कोई बाहर खड़े होते थे, कईयों को मतलब कि कई मजबूरियां होती थी, उनको सस्पेंड कर दिया जाता था। तो स्टूडेंट की फिर मैंने पूरी लड़ाई लड़ी। तो उस टाइम पे फिर मैं NSUI का मतलब कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट हुआ, और मुझे प्रेसिडेंट बनाने जो इस टाइम AICC के हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, रागिनी नायक जी, तो वो उस टाइम पे मुझे स्पोक्स पर्सन है जो, वो मुझे उस टाइम पे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट थी मैडम। तो वो फिर दिल्ली से अमृतसर में मुझे NSUI का उन्होंने प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया यहाँ आके DAV कॉलेज का। तो फिर मैं जब DAV कॉलेज का प्रेसिडेंट बना, फिर उसके बाद मीनाक्षी नटराजन मैम से या और भी कुछ लोगों से दिल्ली में टैलेंट हंट मीटिंग्स हमारी चलती रही। आप अभी कभी गए हैं कॉलेज? अभी मैं कई बार गया हूँ कॉलेज। मेरा डिपार्टमेंट में सभी के साथ अच्छी रिलेशन है। यहाँ रजनी बाला मैम है बॉटनी डिपार्टमेंट में, तुम्हारे HOD रहे हैं डेजी मैम, हमारे HOD वहाँ बायोटेक में विकास सर है। तो मेरे अभी भी सभी के साथ अच्छे रिलेशंस हैं। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, बॉटनी डिपार्टमेंट में, जूलॉजी डिपार्टमेंट में नीरज गुप्ता सर थे, अभी भी हैं, तो वो नीरज गुप्ता सर के साथ भी अच्छी रिलेशन है। तो मेरे सभी के साथ अच्छे रिलेशन, आज भी बहुत अच्छे रिलेशन है। अभी भी मैं कॉलेज जब आऊँ तो जाता हूँ, और शर्मा टी स्टॉल पे भी जाता हूँ, ठीक है। तो मतलब कि उस टाइम पे हमने काफी रिफॉर्म किए स्टूडेंट्स को लेके। तब एक्सेल शीट पे जब बच्चों को फाइन पढ़ना, तब मैंने एक्सेल शीट बनानी और प्रिंसिपल साहब को कहना किसी को 2000-2500 उनके फाइन्स के लिए लड़ाई लड़नी, उनके राइट्स के लिए लड़ाई लड़नी। तो तब भी कोई सस्पेंड हो जाना, उनको उसको रीस्टेट कराने के लिए लड़ाई लड़नी। तो उस टाइम भी हमने काफी ज्यादा मतलब कि स्टूडेंट वेलफेयर के काम किए। तो उसके बाद फिर मैं मतलब कि पूरे अपने अमृतसर में कॉलेजेस का प्रेसिडेंट नॉमिनेट हुआ। तब रंजू रमावत जी होते थे NSUI के मतलब कि जो नेशनल प्रेसिडेंट। तो मतलब कि फिर काम किया। उसके बाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट में फिर MBA 8 to 10 किया। ओके। तो वहां भी मैं प्रेसिडेंट रहा ग्लोबल इंस्टीट्यूट में। ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, तो अभी वहां का एलुमनाई का भी मैं प्रेसिडेंट हूँ ग्लोबल इंस्टीट्यूट में। मतलब एक तो आप शुरू से ही पॉलिटिक्स में भी एक्टिव थे? जी। उसके बाद मैं सोशल वर्क में आया। ओके। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पॉलिटिक्स के साथ साथ सोशल वर्क इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक पॉलिटिशियन की बहुत जगह मजबूरी हो जाती है, कंस्ट्रेंट बड़े आ जाते हैं उसके आगे, लेकिन एक सोशल एक्टिविस्ट के पास कंस्ट्रेंट कम आते हैं। जैसे मतलब कि एक एक्टिविस्ट को तो मतलब कि सोशल रिफॉर्म के लिए काम करना पड़ता, लेकिन अगर एक पॉलिटिशियन है वो अगर रिफॉर्म करने की कोशिश भी करे तो कई अपने उसको वोट बैंक या कई अपने उसके आगे खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण वो चाह के भी कई बार रिफॉर्म नहीं कर पाता। देन मतलब कि मैं एक सोशल एक्टिविटीज में मैंने काम करना शुरू किया। मैंने देखा कि कॉलेज टाइम में बच्चे सिगरेट का उस टाइम सिगरेट ही ज्यादा चलती थी 2006-7 में। 5-6 में नशा नहीं था पंजाब का, जो अभी ड्रग्स का मेन इशू है। 2005-6 में नहीं था, ये स्टार्ट हुआ 10 के बाद ज्यादा, 2010 के बाद फिर तो एकदम से ही आ गया काफी ज्यादा। तो 5-6 में मतलब कि पिक्चर से बच्चे फॉलो कर लेते थे, सिगरेट पीकर इन्फ्लुएंस हो जाता था, है ना। तो उस टाइम पे फिर हमने 10 के बाद जब मैंने देखा कि ये नशा बहुत ज्यादा आ रहा है, ये बाहर वाली जो कंट्रीज है जो मतलब कि हमारे बॉर्डर स्टेट है, तो बॉर्डर स्टेट होने के कारण बाहर वाली कंट्रीज चाहती हैं कि पंजाब को कैसे मतलब कि यंगस्टर्स को कैसे दबाया जाए। तो उन्होंने यहाँ पे गन कल्चर और ड्रग्स के साथ गन फ्री ऐसे बॉर्डर से आना शुरू हुआ। तो जब ये चीजें आनी शुरू हुई तो फिर मैंने सोचा कि पॉलिटिक्स तो एक सेपरेट पार्ट है, ठीक है, पॉलिटिक्स तो हमें चाहिए ही है, बिकॉज हमारा जो देश है वो पॉलिटिक्स के साथ ही चलता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में क्या है कि पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पर कोई पेरेंट्स ये नहीं कहता कि पॉलिटिशियन बने हमारा बेटा, जबकि इसमें पढ़े लिखे बच्चों का आना बहुत जरूरी है अगर डेमोक्रेसी को बचाना। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं अगर जॉब कर रहा हूँ तो मैं अपनी जॉब का सैलरी का जो 10% या 15% पार्ट है वो मैं दान नहीं करूंगा, वो मैं सोशल सर्विस में लगाऊंगा। तो फिर मैंने एंटी ड्रग अब्यूज के ऊपर रेगुलर पूरे पंजाब में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोग्राम्स किए।
और यहाँ तक कि कहीं कहीं गवर्नमेंट्स को भी जाके कहा कि जैसे हमारे डिफरेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज है, जैसे वुमेन कमीशन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तो ऐसे हम एक एंटी ड्रग अब्यूज कमीशन क्यों ना बनाए। मतलब कि आप जो है अपनी इस वाली पुलिस को मत लगाओ जो आपकी ये वाली है, डीएसपीज होते हैं, एसीपीज होते हैं, इसके लिए आप एक डिफरेंट कमीशन बनाओ। जैसे आपके पास फोर्स पड़ी है, आईआरबी पड़ी है, पीएपी वाली फोर्स पड़ी है, जो रिजर्व फोर्स जिसको हम कह देते हो, आप सब डिवीजन की पुलिस को ये वाले काम मत दो। आप जो रिजर्व फोर्स है आपके पास, जो जब कोई वीआईपी आता तब आप सड़कों पे देखते हो जिनको भरी पड़ी होती है फोर्स, आप उस डिपार्टमेंट को एक अलग से बना दो। ओके, ठीक है। उसके बाद चलो हमने मेल्स भी की, मैंने चंडीगढ़ जाके सीएम को लेटर्स भी दी उस टाइम पे। मतलब कि उसके बाद फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सीएम रहे हैं, एक टाइम वो भी डीएवी कॉलेज आए थे, तब भी मैंने उनको ये एक रिप्रेजेंटेशन दी थी जब कैप्टन अमरिंदर सिंह डीएवी आए। तो मैंने उनको कहा कि सर आप ये, उसके बाद आई डोंट नो कि इनका कौन सा फैसला हो, उस टाइम पे बाद इन्होंने एक एसटीएफ बनाई जो बिल्कुल डिफरेंट, जिसका काम सिर्फ ड्रग अब्यूज के साथ ही था, या ड्रग्स के साथ जो सिस्टम होता था, क्योंकि पुलिस का मेन काम रहता है प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ क्राइम। अभी भी वही होना चाहिए। बट आपके टाइम पे तब था ना कि स्टूडेंट्स जो या जो यंग माइंड्स थे वो सिगरेट का धूम्रपान का जो सेवन करते थे, टोबैको, राइट। तो उस टाइम पे जो इन्फ्लुएंस था, अब वो उससे तो लाइक कमिंग टू लाइक दिस ईयर, तो अब तक तो लाइक अब पंजाब में आप चाहे देखिए, चाहे ऑल ओवर इंडिया में देखे, नशा आ रहा है, लेकिन स्टिल पंजाब उसमें से जिसका सबसे ज्यादा नाम आता है। चाहे हम वो टॉप स्टेट्स में भी नहीं है जो नशा क्या बोलते हैं उसको सेवन करते हैं, बट स्टिल हमारा एक टैगलाइन बन गई है एक पंजाबी पे। बिल्कुल। तो आपके क्या व्यूज है उस पे कि सरकार उस पे क्या कर सकती है, एंड लॉ एंड ऑर्डर कहाँ खराब हुआ है? सर देखो, गवर्नमेंट चाहे तो सुबह पढ़ते तक नशा खत्म कर सकती है विद इन 24 आवर्स, अगर हर बंदे की नियत हो कि इसको खत्म करना। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि ये सिर्फ कागजों में ही खत्म हो रहा है, थ्योरेटिकल ही खत्म हो रहा है। अभी स्टेट गवर्नमेंट ने युद्ध नशा विरुद्ध एक कैंपेन स्टार्ट की, अच्छी कैंपेन थी, मैं मानता हूँ कि चलो किसी गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया, लेकिन वो अपना जो ट्रैक है उसका वो फिर भटक गए। रीजन है कि बात तो फिर वहीं पे खड़ी जो मैं 2010 में रिप्रेजेंटेशंस देता था कि ये एक सब डिवीजन की जो पुलिस है उसको ये काम बिल्कुल मत दो। उसका रीजन है जो सब डिवीजन के चौकीज हैं, पुलिस स्टेशन हैं, उसमें ब्लैक शीप्स बैठी हैं। सभी नहीं है, 90% पुलिस अच्छी होगी, लेकिन 10% उसमें भी ब्लैक शीप्स हैं। अब देखो, सपोज करो हम एग्जांपल के तौर पे एक एरिया का नाम लेते हैं, रतन सिंह चौक। अब सपोज करो रतन सिंह चौक की अगर हम बात करें या मकबूलपुरे की बात करें, जो हमेशा ही रहे हैं, मतलब जो ड्रग्स में ना कुछ एरिया काफी रहे हैं हाई, उसमें क्या कि उसमें अगर सपोज करो कोई ड्रग बेच रहा है तो उसका उस एरिया के पुलिस को पता होगा। बिल्कुल। एसएचओ बदल जाएंगे 3 महीने बाद, चौकी इंचार्ज बदल जाएंगे, लेकिन मुंशी वही रहेगा, हेड कांस्टेबल वही रहेगा, कांस्टेबल वही रहेगा। ठीक है। और जब नया बंदा आएगा उसको उन्होंने बताना ही नहीं उसके बारे में, अगर बताएंगे भी तो काफी जगह हैंड्स इन ग्लव हो जाता है। अगर मैं एक एक्टिविस्ट हूं, मैं आप उसको बताऊं कि सर ये बंदा कर रहा, उन्होंने उसी टाइम बात को लीक कर देना कि वो बंदा कह रहा है। तो इसके लिए मैंने 2010 से लेके आज 2026 हो गया, 16 साल से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कंसिस्टेंटली यही कह रहा हूं कि इसके लिए आप एक सेपरेट डिपार्टमेंट रखें, सब डिवीजन को ऑथोराइज ही ना करें कि वो इनको पकड़ सके। बट उसमें फिर लॉ एंड ऑर्डर की भी गलती है, सिर्फ प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम रहे। अगर वो नाम तक भी बता रहे हैं कि ये बंदा रिपोर्ट कर रहा है। हाँ सर, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट्स ने, अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट अगर जितनी देर तक ये सब डिविजन्स का काम सिर्फ एक रहना चाहिए, प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ क्राइम। अब हो क्या रहा है, उनको फॉर्मेट्स दिए जा रहे हैं, सब डिवीजन, पुलिस स्टेशन और चौकी तो सिर्फ इनके डेली के फीडबैक भरने को रह गए ये युद्ध नशा विरुद्ध का। अगर कोई क्राइम हो जाता है उनके पास पहली बात तो ये पुलिस पूरी नहीं है। ठीक है। अगर कहीं पुलिस है तो वो इनके फॉर्मेट्स भर रही है युद्ध नशा विरुद्ध के, क्योंकि ये सीधा सीएम के साथ अटैच है, चंडीगढ़ के साथ, उनको होता कि ये भर दो। और पुलिस का वो काम सब डिवीजन का ये होना चाहिए। आपको पता, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक रूम है जिसमें सारा सर्विलेंस लगा हुआ टोटल, उसमें पूरा अमृतसर में इतना कैमरा है, वो सारा वहां से सर्विलेंस कर सकते हैं। लेकिन करें कैसे बताओ, वहां भी स्टाफ कम है। दूसरी चीज है कि अगर सब डिवीजन को आप इन कामों में लगा दोगे, कोई वीआईपी आ रहा तो उधर लगा दो,
हर रोज अमृतसर में देखो टूरिस्ट प्लेस है, कोई ना कोई वीआईपी आ गया, वहां आगे ही नफरी कम है पुलिस की, तो आप वीआईपी में लगा रहे हो, आप युद्ध नशा विरुद्ध के फॉर्मेट बनाने में लगा रहे हो, उनको आप लगाओ प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ क्राइम में। उनसे आप ये पूछो कि अगर क्राइम हुआ आपके एरिया में तो आपने इसको होने से पहले प्रिवेंट क्यों नहीं किया, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। अब होगा रहा क्राइम हो गया, क्राइम होने के बाद बंदे को देखा जा रहा है पकड़ना है कि नहीं पकड़ना, कि कैसे पकड़ना है, बिकॉज क्राइम अगर हो गया, जिसका नुकसान हो गया वो तो हो गया। और दूसरी चीज है 109 752 का सबसे ज्यादा मिस यूज इस टाइम पे हो रहा है कि जिस बंदे को पकड़ लिया उसके ऊपर वारागर्दी का पर्चा डालो, उसको भेजो, जबकि दोनों बेलेबल ऑफेंस, उनके ऊपर बेल नहीं दी जा रही। 10-10 15-15 दिन अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को जेल में लगाए जा रहे हैं। कोई जेल कोई अच्छी जगह थोड़ी ना, आपको साइकेट्रिस्ट रखने चाहिए, आपको साइकोलॉजिस्ट रखने चाहिए जो मतलब कि इनके माइंड के ऊपर काम करे, ना कि आपको कागज भरने के लिए ये दिखाना चाहिए कि हमने जी 109 वारागर्दी का पर्चा डाल दिया, 10 दिन जेल में। 10 दिन जाएगा वो तो और अच्छे रिलेशन अंदर से ले आएगा, वो कहेगा मैं 10 दिन के लिए आया हूँ बाहर, अंदर अब 10 दिन बाद बाहर जा रहा हूँ, बताओ कुछ काम करना है बाहर तो बताओ। तो ये चीजों के ऊपर गवर्नमेंट्स को चाहिए कि 109 752 का मिसयूज बंद होना चाहिए। अगर 752 या 109 किसी के ऊपर की है तो उसको एज पर लॉ बेलेबल ऑफेंस रखो, प्रिवेंटिव इसको कहते हैं ना, प्रिवेंटिव। तो प्रिवेंटिव उसको डर रहना चाहिए इसका, ठीक है। और साइकोलॉजिस्ट इनके ऊपर काम करे, जो इनके ब्रेन पे काम करे, साइकियाट्रिस्ट हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, स्टाफ कम है। आप अब रिसेंटली वी डिड अ पॉडकास्ट विद द एक्स डिप्टी मेयर, तो उन्होंने उनसे भी हमने यही सवाल पूछा था कि आज की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमृतसर में है वो सही है, जो जब वो गद्दी पे थे क्या वो सही था आपके हिसाब से, या अब कॉर्पोरेशन अभी सही काम कर रही है आज से 10 साल पहले भी? सर कॉर्पोरेशन जो थी वो पहले ही ठीक काम कर रही थी। अब देखो ना, अब कॉर्पोरेशन के पास टेक्नोलॉजी आई, लेकिन उनके पास ये कि टेक्नोलॉजी वो मिसयूज कर रहे हैं। आज सीवरेज बंद होते हैं, इनके जेईस को उसका पेट्रोल और डीजल का इंटेंड मिलता है, ये उसको कभी भी हमेशा अभी भी सीवरमैन को भेजेंगे, स्टिक मरवाएंगे, टेम्पररी ठीक करेंगे, जबकि इनको डेज फिक्स किए गए हैं कि हर दिन, लेकिन इसके ऊपर सर्विलेंस करने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, इनको बात करने वाला कोई नहीं है। आप देखो 4.5 साल होने लगे, आपको पता गार्बेज अपलिफ्टमेंट की अभी तक भी 4.5 साल में भी आम आदमी पार्टी की गार्बेज अपलिफ्टमेंट की प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई। ये अभी तक गार्बेज की पॉलिसी नहीं बना सके, गार्बेज की अभी तक पॉलिसी नहीं। हर रोज मैसेज आते हैं, आप ये बताओ कि गार्बेज उठाने के लिए क्या मैसेज आना चाहिए कि ऑटोमेटिकली काम होना चाहिए? हमेशा ऑटोमेटिकली काम होना चाहिए। हम कौन सी सदी में रह रहे हैं सर? तो लेकिन अभी भी गार्बेज शहर में अपलिफ्ट नहीं हो रहा और इसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं, बिकॉज प्राइवेट, तब 10 साल पहले क्या था, सारा गवर्नमेंट गार्बेज खुद उठवाती थी, रेडियां आती थी गलियों में, तो कभी आज तक ये कोई इशू ही नहीं था गार्बेज का। अब आम आदमी पार्टी को ये सोचना चाहिए कि जब गवर्नमेंट रेडियां बेचती थी तब तो इशू नहीं था, और अब टेक्नोलॉजी आ गई और प्राइवेट कंपनीज आ गई, ठीक है, और अब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही है। वो क्यों हो रही है? बिकॉज इनके अब ये सोचने वाली बात है कि हेल्थ ऑफिसर्स जो हैं उनको भी तो पूछना चाहिए ना, क्या ये उनकी नीयत तो नहीं है कि गार्बेज अपलिफ्ट सही हो ही ना कभी? क्या पता, नियत की बात मैं कर रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो सुबह नशा खत्म, अगर गवर्नमेंट चाहो तो सुबह गार्बेज इशू खत्म। वो कैसे? कि अगर हर ऑफिसर की नियत हो काम करने की, राइट, तो वो बिकॉज दे आर द पॉलिसी मेकर्स, वो पॉलिसी देंगे तो पॉलिसी ऊपर तक जाएगी। मतलब अथॉरिटीज में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे। अगर मैं आपको कहूं कि ट्रॉलीज इनकी चल रही है गार्बेज उठाने वाली, अगर मैं आपको कहूं कि ट्रॉलीज इनकी चल रही हैं जिसमें इनको कमीशन आ रहा है, और ये चाहते ही नहीं है कि गार्बेज अपलिफ्टमेंट की पॉलिसी ठीक हो, क्योंकि ट्रॉलीज इनकी हैं, और ट्रैक्टर आगे से बदला जाता है, ट्रॉली पीछे वही है, और एक ही गार्बेज 10-10 बारी वेटेज हो रहा है इसका। तो बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जहाँ पे काम करने का अभी सर नियत की बात है, सिर्फ नियत की। बिकॉज दो चीजें हैं, जहां तो गवर्नमेंट, इसीलिए मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट का मेन काम ये होना चाहिए कि आप लोगों के बीच में जाके इनके जो लीडर्स हैं वो क्यों नहीं आज तक, मतलब कि चीफ मिनिस्टर साहब से, मान लो लोकल बॉडीज मिनिस्टर से ये डिस्कस कर सके कि सर ये गार्बेज अपलिफ्टमेंट की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही, बिकॉज दीज आर दी रीजंस। इनको को मुझे दो चार्ज दो, मुझे चार्ज दो,
ठीक है, 24 आवर्स काम करके इसको ठीक करके दूंगा, गार्बेज अपलिफ्टमेंट को ठीक करके दूंगा। तो या फिर मुझे लगता है ये तब ठीक होगा जब ये जो अभी लॉबी चल रही है ऑफिसर्स की, ये रिटायर हो जाएंगे, नई लॉबी आएगी रिटायरमेंट के बाद, जो अभी नए लड़के आ रहे हैं वो इसको ठीक करेंगे। बिकॉज करना क्या, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, ऊपर से नीचे प्रेशर आ रहा है, और वो भी क्या करेंगे, जो ऊपर से प्रेशर आ रहा है वो नीचे से उनको करना पड़ेगा, अदरवाइज दे वुड बी ट्रांसफर्ड। सो आपके हिसाब से, जैसे आपने बोला कि लाइक कॉर्पोरेशन में भी स्टाफ कम है और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स जहां पे आपको लग रहा है फंडिंग की प्रॉब्लम है पंजाब में, तो अभी जो उन्होंने योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो टूरिस्ट को मतलब घुमा रहे पंजाबी सिटीजन्स को, पंजाब के जो वासी हैं, या फिर जो उनको 1500 या जो 2000 रुपए आ रहा है महीना, क्या ये सही है? सर ये बिल्कुल गलत है। फ्री बीस तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए, फ्री बीस तो बिल्कुल ही बंद होनी चाहिए। आप ये देखो, पंजाब का 2.5 लाख करोड़ का बजट है, ईयरली बजट, ठीक है। हम कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम एजुकेशन क्रांति लेके आए, हम हेल्थ की क्रांति लेकर आए। हेल्थ का बजट 7000 करोड़, टोटल बजट 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ में से सिर्फ 7000 करोड़ हेल्थ का बजट और 19,000 करोड़ एजुकेशन का बजट और 18,500 करोड़ ये मामातियां सत्कार योजना का बजट। और अगर 2.5 लाख करोड़ का आप ये 19,000 करोड़ लगाएं तो आपको पता 7%, ओनली 7 और 8% बजट, इसका मतलब 7% 100 में से हम आम आदमी पार्टी सिर्फ 7% बजट एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं और 2-2.5% बजट जो है वो हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि हम हेल्थ को बहुत अच्छा कर दिया, हम एजुकेशन क्रांति ले आए और 18,500 करोड़, लगभग 7% ही एजुकेशन के बराबर जो बजट वो मामातियां सत्कार योजना का लगा दिया। और इसके साथ क्या, 15,000 करोड़ का हमने लोन अप्लाई कर दिया। और जो डीए है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, वो बेचारे रो रहे, वो मतलब कि मानयोग हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि 6% विद इंटरेस्ट डीए दो। तो अब गवर्नमेंट जो मैंने सुनने में है वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। इसके ड्रॉबैक्स क्या है? जैसे अब 100 में से लाइक 95% ही वो सरकार बांट रही है, वो पैसा वो 5% पे ही वो पंजाब को चला रहा है। सर पुराने टाइम पे कहते थे कि अगर आप किसी के साथ लड़ नहीं ना सकते कि दूसरा तगड़ा है तो उसका बी नाश करना है तो उसको फ्री में बिठाओ और खिलाना पिलाना शुरू कर दो, खिलाना पिलाना शुरू कर दो। जब आप फ्री में खिलाओ पिलाओगे उसको आदत पड़ जाएगी हर ड्राम की, वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर हम सारा कुछ ही फ्री कर देंगे, मैं ये नहीं कहता, हाँ ठीक है सोशल सिक्योरिटीज वेलफेयर स्कीम अब्रोड फॉरेन कंट्रीज में भी चलती हैं, बट फॉरेन कंट्रीज पहले ये देखती हैं कि उनका एम्प्लॉयमेंट कितना है, एम्प्लॉयमेंट उनका पूरा होता है। यहाँ पे ना एम्प्लॉयमेंट, आप बस 18,000 करोड़ रुपया यहाँ जो फूक रहे हो, आप 18,000 करोड़ रुपए की एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दो। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो डीए है, मानयोग हाई कोर्ट ने भी कहा उसको रिलीज कर दो, डीए को रिलीज करो, ठीक है। तो आप ये जो फ्री यूनिट बिजली दे रहे हो, आप 5 रुपए यूनिट बिजली कर दो, हाउस होल्ड की 5 रुपए कर दो और दूसरों की 6 रुपए कर दो। आपको पता 600 यूनिट फ्री बिजली का भी कंसेप्ट सारा फेल हुआ। रीजन क्या कि मीटर रीडर तो सारे धरने पे बैठे, आपने पीछे देखा मीटर रीडर धरने पे रहे हैं, ठीक है। और प्रो डाटा बेसिस के ऊपर लोगों को बिल आ गए और स्मार्ट मीटर्स लगने के कारण तमिलनाडु में स्मार्ट मीटर्स वहां के सीएम साहब ने रिजेक्ट कर दिए और हमारे पंजाब में स्मार्ट मीटर्स लग रहे। आप क्यों नहीं इसको रिजेक्ट किया स्मार्ट मीटर्स को, ठीक है। तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी सर, अदरवाइज हमारा पंजाब तो खत्म हो गया। यहाँ बच्चे पढ़ लिख के फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं बिकॉज एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है। और जो पढ़ लिख गया वो अंडर एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा है, ठीक है। इंडस्ट्री कौन सी आई, आप ये बताओ। हमने मोहल्ला क्लिनिक तो खोले, तो हमने हॉस्पिटल क्यों नहीं खोले, मेडिकल कॉलेजेस क्यों नहीं खोले? आप मुझे पिछले 4.5-5 साल में एक नया मेडिकल कॉलेज बताओ जो पंजाब में खुला हो। एक भी नया मेडिकल कॉलेज पंजाब में नहीं आया। तो अगर मेडिकल कॉलेज नहीं आया तो बस हम फ्री चीजें बनती जाए, वो तो सिर्फ रेनोवेशन ही हुई है ना हर चीज की भी। तो अब तो उन्होंने अगर आपको उनकी कुर्सी पे बिठाएं, व्हाट चेंजेस विल यू ब्रिंग? सर देखो, सबसे पहले तो मैं एजुकेशन और हेल्थ का बजट बढ़ाऊंगा, ओके। बिकॉज कि किसी भी स्टेट की जो रीढ़ की हड्डी है वो एजुकेशन है
और दूसरी चीज, स्कूल लेवल से मॉरल वैल्यूज चलनी चाहिए। स्कूल लेवल से आप बच्चे को प्रैक्टिकल और उसका बेस बढ़ाना शुरू करो। और एनसीईआरटी को लागू करवाऊंगा। आज की डेट में मतलब कि बच्चों की हर साल बुक्स चेंज हो जाती हैं हर स्कूल्स में, प्राइवेट्स में, जबकि हमारे टाइम पे एनसीईआरटी चलती थी। जिस बच्चे ने कॉम्पिटिटिव पेपर को क्रैक करना, वो आफ्टर 10th एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना शुरू कर देता था। +1 +2 ग्रेजुएशन और 9th 10th की भी एनसीईआरटी, तो वो बंदे क्रैक करते थे, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े हैं चाहे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़े हैं। लेकिन आज की डेट में वो चीज ही सिलेबस, हर स्कूल का अपना सिलेबस है और पेपर भी अब खुद हो रहे हैं। यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज में तब्दील कर दिया गया, जबकि ऐसा कम होना चाहिए था। हमारे टाइम में जितने अमृतसर के कॉलेजेस थे वो सारे जीएनडीयू के अंडर होते थे। तो हर स्टेट में, हर पंजाब में भी कई कॉलेजेस जो थे वो जीएनडीयू के अंडर होते थे। तो अब यूनिवर्सिटीज बढ़ रही हैं, इसके कारण एजुकेशन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजों के ऊपर काम गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। एजुकेशन, हेल्थ को बढ़ाना पड़ेगा, एग्रीकल्चर को बढ़ाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर स्टेट है पंजाब, जो है वो एग्रीकल्चर स्टेट है। तो इसमें आप ये बताओ कि एग्रो इंडस्ट्री कौन सी है, बताओ। कोई आप एग्रीकल्चर स्टेट हो पंजाब और पंजाब में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ना हो, हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये चीजें बिल्कुल प्रैक्टिकल है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा। आप एग्रीकल्चर गुड्स को मतलब कि बनाकर और बाहर स्टेट्स में भी भेजो और फॉरेन कंट्रीज में भी भेजो और पता चले मेड इन पंजाब। और जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए आप क्या करें? देखो, जब इंडस्ट्री नहीं आएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगी। आप ये देखो कि पंजाब में एग्रीकल्चर स्टेट हो, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, तो आपकी एम्प्लॉयमेंट खत्म होती है, यूथ लेकिन लेके बाहर जा रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे अडानीज के या बाहर के जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं उनके मॉल्स लाए जा रहे हैं यहाँ। और उनके मॉल्स आने के कारण क्या हो रहा है, एक के साथ एक चीज फ्री। और जो छोटा दुकानदार है हमारा पंजाबी, वो खत्म हो रहा है, क्योंकि मॉल्स में जो आपके डी मार्ट्स हो गए या बड़े बड़े हो गए, ठीक, वहां पे आपको एक के साथ एक चीज फ्री मिल रही है। और जो छोटा दुकानदार है वो खत्म हो रहा है। आगे दिवाली होती थी, लोग छोटे दुकानदार से गिफ्ट लेते, अब हर कोई डी मार्ट जाता है, एक के साथ एक गिफ्ट फ्री मिल जाना। लोकल एम्प्लॉयमेंट भी खत्म है। सर, लोकल एम्प्लॉयमेंट रहे नहीं। तो इसके ऊपर मानयोग चीफ मिनिस्टर साहब, जो भी हमारी स्टेट के भगवंत सिंह मान है, जो भी गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर हो, जिस भी गवर्नमेंट का हो, उसको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि आप टूरिज्म, अमृतसर टूरिज्म है, आप बताओ टूरिज्म के ऊपर ब्रेक लगी। इस टाइम पे अमृतसर में मैक्सिमम होटल जो है वो बिकाऊ हो गए, जबकि अमृतसर टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे टूरिज्म के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने? कुछ नहीं किया। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए पंजाब में क्या किया? कुछ नहीं किया। सिर्फ फ्री बीज, और फ्री बीज बिल्कुल गलत है। आज भी गवर्नमेंट को चाहिए 5 रुपए यूनिट कर दो, 6 रुपए यूनिट कर दो, लेकिन फ्री बीज को बंद करना चाहिए। आईटी सेक्टर भी जैसे देखिए जो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा जनरेट करता है बच्चों को, लाइक गुड़गांव, दिल्ली, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई, यहाँ ऐसी प्लेसेस पे सर, मैं अभी आईटी ही एक कंपनी के साथ मिलकर आया, जिसका मिट्स करके माल रोड आईटी कंपनी है, मिट्स। अभी मैं वहीं बैठा था। अब बताओ, आईटी कंपनीज वहां चलेगी जहां इंडस्ट्री होगी। आईटी का सॉफ्टवेयर कौन खरीदेगा? जहां पे बिजनेस होगा। अब उनके साथ यही डिस्कशन हो रही थी, वो कहते कि अमृतसर में या पंजाब में बिजनेस ही नहीं है, तो हम सॉफ्टवेयर किसको बेचें? आईटी कंपनी का काम सॉफ्टवेयर बेचना है, या सॉफ्टवेयर बनाना है, या डोमेन बनाना है, या डोमेन बेचना है। राइट, यही काम है आईटी का। और अगर इंडस्ट्री होगी, एम्प्लॉयमेंट होगी, तो वो डोमेन बनाएंगे, डोमेन बेचेंगे, सॉफ्टवेयर बनेगा, सॉफ्टवेयर बिकेगा, और वो चेक रख सकते हैं। सॉफ्टवेयर का काम तो ये है ना कि एक बंदा बेंगलोर बैठा है और वो पंजाब में उसकी आईटी कंपनी चल रही है, वो बेंगलोर से पंजाब दे सके कि मेरे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपका कंपनी चल रहा है, आप डिफरेंट प्रोफेशंस में, आप एक जगह नहीं रह सकते, आप ट्रेवल कर रहे हैं। तो अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, अगर आपके पास आईटी कंपनी का सॉफ्टवेयर तभी हायर करेंगे ना, अगर आपको पता हो मेरे पास 35 एम्प्लॉय हैं, तो मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, तो मुझे हर एक एम्प्लॉय की एफिकेसी देखनी है कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा। तो वो आप कहाँ से देखो? वो सॉफ्टवेयर से देखोगे। अगर इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे देखो शाटा इंडस्ट्री होती थी, बटाला रोड सारा इंडस्ट्रियल एरिया होता था, तो आज ना शाटा में कोई इंडस्ट्री है ना बटाला रोड इंडस्ट्री है। और जो होटल इंडस्ट्री थी टूरिज्म के कारण, वो भी खत्म हो रही है। मैक्सिमम होटल ऑन सेल लगे हैं, पूरा हाल हो रहा है होटल इंडस्ट्री का भी। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि गवर्नमेंट का ध्यान मतलब कि हर चीज के ऊपर से हट रहा है, जिसके कारण बच्चे जो हैं वो अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण अंडर डिप्रेशन जा रहे हैं।
तो ये चीज गवर्नमेंट्स को देखनी पड़ेगी कि आप ऐसे प्रोग्राम लाओ जहां पे बच्चे आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन आप उनको उनकी सेल्फ फाइनेंसिंग में हेल्प कर सको, सब्सिडी मिले बच्चों को, सब्सिडी मिले, सब्सिडी मिलेगी। आज कोई बैंक लोन देता, पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि आप ये काम करो, इसमें हम आपको सब्सिडी देंगे। और अभी देखो कई स्टेट्स ऐसी है जहां पे सब्सिडी मिल रही, J&K में सब्सिडी काफी है, ठीक है। उसमें आगे आपने देखा होगा कई साल पहले पैलेट्स मारते थे, अब वो पैलेट्स कैसे बंद की गवर्नमेंट्स ने। ये चीजें देखी कि जो बच्चा ग्रेजुएट है ये हमारे से लोन ले, और जिसका स्टार्ट इंटरेस्ट 5 साल बाद करेंगे। तो गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अगर यूथ को बचाना है तो आप ऐसे प्रोग्राम लेकर आओ कि जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो IT कंपनी खोलना चाहते हैं या कोई अपनी एग्रो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, आप उनको सब्सिडी दो और खुद बुला के। क्योंकि आज की डेट में NOCs ही इतनी है, आज किसी ने पेट्रोल पंप खोलना हो तो उसको NOC नहीं मिलेगी। अभी मेरे साथ बाहर फ्रेंड बैठा, उसने बेचारे ने पीछे 120 गज का पुड्डा का एक प्लाट लिया 1.5 साल पहले, और उसको 1.5 साल हो गए उसकी NOC मांगते। और कल मैं पुड्डा ऑफिस उसके साथ होके आया, पता चला उसको NOC नकली दी हुई पुड्डा ने, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ तो NOC मिलती नहीं, अगर मिले तो नकली दे दी जाती, जबकि पुड्डा डिपार्टमेंट के जो हेड है वो चीफ मिनिस्टर खुद है, भगवंत सिंह मान। तो आप देखो कि पुड्डा के पीछे बिजनेस भी चले, मतलब कि कितने बंदे मतलब कि करप्ट। आप आज पुड्डा ऑफिस जाओ और आपको 90% लोग रोते निकल। करप्शन तो फिर अभी भी लाइक रूट्स पे बैठा हुआ है। सबसे बड़ी करप्शन अगर है तो वो पुड्डा डिपार्टमेंट में है, पुड्डा में। और पुड्डा डिपार्टमेंट में ऐसी करप्शन है जिसको आम बंदा जो है, सिंपल बायर हम जिसे कह देते हैं, वो पकड़ ही नहीं सकता। आप पुड्डा ऑफिस जाओगे, आप ऑफिसर को मिलने जाओगे, पीछे से जिस कॉलोनाइजर ने गलत किया होगा उसको फोन चला जाएगा कि वो बंदा आया, मतलब कि आपने कॉलोनाइजर को नहीं बताया लेकिन उसको पता चल जाएगा वो कर गया। मतलब कि ये कि इसलिए मैं तो ये चीज कहूंगा गवर्नमेंट को कि हम कह रहे हैं हम NOCs के ऊपर जितनी देर सर ब्रेक नहीं ना लगती, NOC एक करप्शन का घर बनाया गया, चाहे वो कॉर्पोरेशन है, चाहे वो ट्रस्ट है, चाहे वो पुड्डा है। अगर आपने घर की रजिस्ट्री करा रही, इंतकाल करा लिया, तो देन वाई NOC किस चीज की? तो NOC को रखा इसी कारण गया, इसी कारण रखा गया, चाहे गवर्नमेंट जो मर्जी NOC खत्म। तो मैं आज गवर्नमेंट को पूछता हूँ कि आप पुड्डा पे जाके छापा मारो, चेक करो कि कितने बंदों का रेड नाम आ रहा है, जो कॉलोनाइजर है उनकी कॉलोनियों को बैन करो, उनको अंदर करो, उठा के अंदर करो। लेकिन ये सब हैंड्स इन ग्लव चल रहा है। आप अगर वो इंडस्ट्री देख लें, वाइन इंडस्ट्री देख लें, हमें सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है पंजाब गवर्नमेंट को? शराब से आ रहा है, जिससे कई डिपार्टमेंट्स की सैलरी चल रही है। हालांकि ये चीज के ऊपर मैंने नेशनल कन्वेंशन किया था 2 साल पहले, शराबबंदी और नशाबंदी के ऊपर, और कई ऑफिसर्स ने कहा कि आप हमारी सैलरी बंद करा दोगे बिकॉज शराब से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है। और आप कह रहे हो शराबबंदी होनी चाहिए, नशाबंदी होनी चाहिए, तो आप तो रेवेन्यू, इकोनॉमी भी इसी से ही बची थी, इसी से ठेके चालू कर दिए थे, ठेके चालू। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उस शराब की अगर बात करो, आप शराब की बोतल लाओ, उसके ऊपर लिखा होगा मिनिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं, MRP की डेफिनेशन चेंज, मिनिमम रिटेल प्राइस, और उस प्राइस से भी ज्यादा शराब बिकती है। मतलब कि अगर किसी बोतल के ऊपर 1000 रुपया रेट होगा, वो शराब 2000 रुपए की बिकेगी बाद, या 1500 की, या 1300 की, जो भी XYZ, तो बिल नहीं काटा जाएगा। बिल भी नहीं काटा जाता। कभी देखा शराब कोई खरीद रहा हो, उसको बिल मिल रहा हो, उसको बिल काट रहे हो? तो ये चीजें क्या अगर आपको और मुझे पता, तो भगवंत मान जी को नहीं पता, केजरीवाल जी को नहीं पता? तो ये चीजें ही लोग डिफरेंस मांगते हैं। अब जिस दिन ये चीजों का डिफरेंस आपको दिखना शुरू हो जाएगा, उस दिन आप समझ लो कि पंजाब ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। जिस दिन हर बंदा कुछ भी बेचेगा और उसका बिल निकल के आएगा, जहां से हमें मैक्सिमम रेवेन्यू आ रहा है, तो इसका मतलब क्या? एक्साइज डिपार्टमेंट दे आर आल्सो इन्वॉल्व्ड। तो किस किस को आप मतलब कि करोगे? ये तो इसीलिए जो मिडिल क्लास है वो पिस रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, और अमीर और अमीर हो रहा है। तो पंजाब को बचाना पड़ेगा, पंजाब को बिल्कुल बचाना पड़ेगा। और इसके लिए हमें AI की जरूरत नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, खुद गवर्नमेंट को ब्रेन ड्रेन वाले बंदे आगे लाने पड़ेंगे जो अपना ब्रेन ड्रेन करें, और ब्रेन ड्रेन करके इनके ऊपर सर्विलेंस करें। माइनिंग देख लो, माइनिंग से कितना पैसा आता है, लेकिन आज भी माइनिंग वैसे ही चल रही, ठीक है। तो ये चीजें कुछ हैं जो मतलब कि हमें बचानी पड़ेंगी, नेचर को बचाना पड़ेगा। ये तो हो गई पंजाब सरकार की बात। अब हम आते हैं भारत सरकार की तरफ।
सबसे पहले तो एक तो आप तो लॉयर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जी। रिसेंटली जो भारत में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, सीजेपी प्रोटेस्ट जी। तो उसमें तो लाइक उन्होंने तो परमिशन भी ली है, जी। सब कुछ सही किया, बट स्टिल लाठीचार्ज उन पे किया, तो ये ह्यूमन राइट वायलेशन ही तो है। सर ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन के साथ साथ डेमोक्रेसी और संविधान पे को भी इन्होंने मतलब कि दबाने की कोशिश की, बिकॉज कि अगर हमने प्रोटेस्ट करना, पीसफुल प्रोटेस्ट करना, और पीसफुल प्रोटेस्ट दिखा भी, वहां पे जंतर मंतर के ऊपर सोनम वांगचुक जी जो बैठे थे उनको कैसे उठाया गया, ये हर एक ने देखा। वो प्रोटेस्ट मैं कहूंगा इसलिए सफल हो गया बिकॉज सोशल मीडिया बच्चों के पास पहुंच था। वो जेनजी थे, जेनजी को सोशल मीडिया इतना आता था कि उनको यहाँ तक डराया गया पुलिस की तरफ से कि आपके ऊपर ये पैकेट है नशे का, ये नशा डाल के आपको अंदर कर दिया जाएगा, और उन्होंने उसकी भी रिकॉर्डिंग कर ली, वायरल हुई अभी, वो भी वीडियो ऑडियो वायरल हुआ बिकॉज दे आर जेनजी, और वो रिकॉर्डिंग होने के कारण उस पुलिस वाले को सस्पेंड भी किया गया। वहां पे ट्रक आ गया पत्थरों से पूरा भरा हुआ, हाँ ट्रक, ये तो लाइक आर्टिकल 19 वाले जो है उनका, उसका तो पूरा वायलेशन। सर वो इसलिए चीजें कही गई, इसलिए उसको देखो आईएसआई के साथ जोड़ने की भी कोशिश की गई कि ये जी पेड है, आईएसआई पेड चल रहा। अब आप देखो जो बंदे के हाथ में, हमारी डेमोक्रेसी में कहा गया, हमारे संविधान में लिखा गया कि आप कोई भी प्रोटेस्ट या कोई भी असेंबली कर सकते हो विदाउट हैविंग आर्म्स, आप पीसफुल प्रोटेस्ट कोई भी कर सकते हो, और विद परमिशन किया, और जो प्लेस असाइंड की गई जंतर मंतर की वहां पे किया, और जो बच्चों ने किया क्लियर कट उनको डंडे मारे गए, और उनके हाथ में कुछ नहीं था, वो भी सोशल मीडिया में आई, कोई आर्म्स नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन उस प्रोटेस्ट को पूरे देश ने सपोर्ट किया, पूरे हिंदुस्तान ने सपोर्ट किया। आप देखो अमृतसर में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गया सीजे के सपोर्ट में, ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में जो स्टूडेंट्स थे कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के, वो सड़क पे आए, और इसमें उन्होंने दिखाया कि हमारी कितना वास्ट संविधान और कितना वास्ट डेमोक्रेसी है। जब ये उदाहरण दी गई पूरे देश में, तो तब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पता चला कि ये अब जो है ये पूरे देश में एक आंदोलन और पूरे देश की मूवमेंट बन गई है, तब वो पीछे है। तो मुझे बताओ बच्चों का कसूर क्या था? नीट, हर साल नीट का पेपर जो है वो लीक होता है, हर साल नीट का पेपर लीक हो रहा है, तो बच्चों ने कुछ गलत तो नहीं डिमांड किया? 30 बच्चे जिन्होंने सुसाइड की, उनकी फैमिलीज का कसूर क्या था? एक बच्चा सारा साल पढ़ता है, अपना ड्रॉप आउट भी करता है साल कई जगह कि मैं नीट में मैं डॉक्टर बनूं, पेरेंट्स जो है लोन्स लेके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और दिल्ली में देखो अगर उसका प्रोटेस्ट किया गया, बच्चों की तरफ से किया गया, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी ऑटोक्रेटिक हो गई थी? वो अपने देश के नागरिक थे, अपने ही थे, कोई बाहर वाले मुल्क से थोड़ी ना आए थे जिनको हम डंडे मार रहे हैं या जिनकी बात नहीं सुन रहे। मैं तो खुद रहा हूं, मीडिया तो उसको कवर भी नहीं, उसको एक अलग ही मोड़ दे देते, बल्कि जो इंटरनेशनल मीडिया, वो जब इंडिया में आई, दिल्ली में जहां पे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहां पे जाकर उन्होंने कवर करा, तो वो खुद स्टूडेंट्स के साथ थे। तो आपको लगता है जो अभी की मीडिया है वो बायस्ड है गवर्नमेंट? सर देखो हर मीडिया वाला बायस नहीं होता, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हर पुलिस वाला गलत नहीं होता, उसी तरीके हर मीडिया वाला बायस नहीं होता। मतलब कि ये तो मैं ये कहूंगा कि मीडिया एक डेमोक्रेसी का पिलर है, और हर मीडिया वाले को ये चीज देखो सोचना चाहिए कि घर चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, लेकिन वो पैसा नहीं चाहिए जिसमें कल को उसका खुद का बच्चा शिकार हो जाए, ठीक है? बिकॉज कि आप ये देखो कि अगर मीडिया फ्री एंड फेयर नहीं होगा, तो फिर दोबारा से जैसे हम ब्रिटिशर्स के गुलाम बने थे, हम किसी ना किसी माफिया के गुलाम बन जाएंगे, गुलाम बनेंगे हम किसी ना किसी। तो वो बच्चों ने जो आंदोलन किया एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स में खुद होने के कारण, तो मैं खुद उस आंदोलन में खुद भी दिल्ली गया था जब ये आंदोलन चल रहा था। तो मैंने भी खुद देखा जाके कि नहीं ये आंदोलन जो बिल्कुल ठीक है कि मैं ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, लेकिन मैं खड़ा तो हूँ, मैं खड़ा तो हूँ बच्चों के साथ, मैं खड़ा तो हूँ। तो उस टाइम पे हमारी एक मीटिंग थी सुरजीत सिंह हरजीत सिंह भवन में भी, तो उस टाइम पे भी ये मतलब की बात चली। लेकिन मैं उन बच्चों को अप्रिशिएट करूंगा जो इस आंदोलन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, मैं हर उस सिटीजन को अप्रिशिएट करूंगा जिन्होंने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया, बिकॉज कि वो बच्चों के करियर का सवाल था। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑटोक्रेटिक बिहेवियर मांगा उन्होंने क्या था? एक रेजिग्नेशन ही मांगा था ना,
धर्मेंद्र प्रधान का, और इतनी बड़ी बात तो नहीं, उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि आप ये पोर्टफोलियो दे के दूसरा पोर्टफोलियो दे दो, उन्होंने रिजाइन मांगा। तो अगर उनको कितनों को पीटा गया, कितने बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हुए, ठीक है, अगर उनकी बात सुनने के लिए महीना, 1.5 महीना, 2 महीने लगे और पूरे देश में जब आंदोलन स्टार्ट हुए तब उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने बात सुनी, तो अब ये खुद सोच सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी ऑटोक्रेटिक बिहेवियर के साथ चल रही है। राइट। तो अभी तो लाइक एक तो ये सीजेपी का मैटर हो गया, आपको लग रहा है जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बिजनेस भी वो उनके साथ बायस हैं, जैसे अडानी अंबानी पे आए दिन आर्ग्यूमेंट्स ही चलते रहते हैं कि वो सरकार उनकी तरफ है, बाकी बिजनेस ठप हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है ऑल ओवर इंडिया में ही, या फिर एक तो वो ह्यूमन राइट का वायलेशन भी कर रहे हैं लेकिन पेड़ भी काट रहे हैं, जो हमारे लाइक जैसे आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, कुछ एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं कि वो भी सरकार के खिलाफ रोज प्रदर्शन करते रहते हैं। सर आप ये देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे हिंदुस्तान में देखो क्या किया, मेधा पाटेकर रहे हैं जो एनवायरमेंटलिस्ट भी थे, जिन्होंने नर्मदा आंदोलन चलाया, उन्होंने देखो कितने साल मेधा पाटेकर जी ने नर्मदा बचाओ प्रोग्राम किए, और पानी में खड़े होकर, नर्मदा नदी में खड़े होकर उन्होंने, उनकी आधी बॉडी जो है वो पानी के साथ गल गई, लेकिन उन्होंने अपना आंदोलन नहीं छोड़ा। तो ऐसे ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट भी रहे हैं। अब देखो उत्तराखंड में वो पेड़ काटने लगे थे, तो आपने देखा होगा कि लोग खड़े हो गए पेड़ों के आगे। मैं खुद लास्ट मंथ अरावलीज और शाहबाद होकर आया, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो 100 मीटर से वाले कम वाले पहाड़ है वो अरावली नहीं है, उन्होंने उनको अरावली कहने से ही इनकार कर दिया कि वो अरावली नहीं है। अब अरावलीज में जब शाहबाद के जंगल जो राजस्थान में है, तो वहां पे ऑलरेडी माइनिंग चल रही है, वहां पे कहा जा रहा है कि हम शाहबाद के जंगल में डैम है, डैम का प्रोजेक्ट बनाएंगे जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जबकि 100 मीटर नीचे डिगिंग की जा रही है, मिनरल्स ढूंढे जा रहे हैं, ठीक है, और वो सारे ये जो जंगल काटने वाले प्रोजेक्ट ये सारे अडानी को दिए। आप एयरपोर्ट पे चले जाओ, वो भी अडानी के पास है। आप जंगल काट रहे हो और वहां पे 200-300 पेड़ों की ऐसी स्पीशीज हैं जहां से मेडिसिन बन रही हैं। आप देखो, अगर हम पेड़ काट देंगे, अगर हम जंगल काट देंगे, तो हमारे जो मतलब कि लाइन्स हैं, जहाँ हमारे एलिफेंट्स हैं, जहाँ हमारे जो नेशनल मतलब कि हैं, तो वो कहाँ रहेंगे, मतलब कि जो एनिमल्स हैं, नेशनल एनिमल्स, वो कहाँ रहेंगे। एक साइड पे तो मोदी जी का आता है कि वो चीता छोड़ रहे हैं जंगलों में, और दूसरी साइड से हम नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म कर रहे हैं। तो इसलिए नेचुरल रिसोर्स में लोगों को कहूंगा कि हम थोड़ा सा धर्म की राजनीति से ऊपर उठे, थोड़ा सा हम देश को भी देखें, सिर्फ अपने इतने से एरिया को देख के बात ना करें। हम ये देखें कि पूरे देश में अगर अरावलीज हम छोटे होते पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता अरावलीज हिल जो है वो एक शील्ड है बहुत बड़ी, जो दिल्ली को, गुजरात को, मध्य प्रदेश को और हरियाणा को और कुछ एरिया पंजाब को शील्ड करती है। छोटे होते हम अरावलीज का नाम सुनते आ रहे हैं, अरावली पहाड़, जहां से कई झरने निकल रहे हैं, कई नेचुरल रिसोर्सेज निकल रहे हैं। तो आज हम अरावलीज को कटिंग कर करके, माइनिंग कर करके, तो आज हमने वो पहाड़ियां पहले 100 मीटर की बना दी, और उसके बाद कह दिया कि 100 मीटर की जो पहाड़ी है वो अरावली नहीं है, उसको बिल्कुल खत्म कर दो, ताकि हम वहां 4 लेन 6 लेन और ये चीजें कर सके। तो मैं ये चीज कहूंगा कि जितनी देर हम बैठे हैं, तो हम तो इसके अगेंस्ट आंदोलन करते रहेंगे, चाहे हमें बार बार राजस्थान जाना पड़े, अरावलीज जाना पड़े और कहीं भी जाना पड़े। तो हम तो कोशिश यही करेंगे कि हम इसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी मतलब कि अरावलीज की एक कमेटी बनी थी, तो वो चल रहा है, वो सब जुडाइज मैटर है। चलो जो माननीय कोर्ट फैसला करेगी देखते हैं। So now let's coming to the last part of this section. It's a rapid fire round where you need to answer a few questions just in one word. So are you ready? Yes. Law or activism, which defines you more? Activism. One law in India you would change immediately. On environment. Can money buy justice in India? Yes. Sadly, yes. Sadly, yes. One social issue India is ignoring. India is ignoring on education and health. One quality every politician should have. He must work on a social reform. Most powerful weapon, law, money, media or public opinion. Law, because it protects a person. What matters more, winning a case or getting justice? Getting justice. One word to describe today's India.
This is one of the most difficult question. Our India is beautiful. Our India is great. Okay, your biggest strength as an activist? My people. If not a lawyer, what would you have been? If I am not a liar, then What would you have been? I would have to What would you pursue then? activism. Your biggest dream that is still unfinished? Again, one of the most difficult questions. I want to finish drugs from my Punjab and from my India. That's great, and it's an honor again to have you with us. Thank you Yes. so much for coming to Crosstalk India. Yes. If you want to give any message to our viewers, what would you give? मैं श्री अमृतसर वासियों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, और जो एजुकेटेड लोग हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो अंडर प्रिविलेज्ड एरिया के लोग हैं या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, आप कम से कम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर उठाएं कि आप उनको एजुकेट कर सकें, उनके बच्चों को अपलिफ्ट कर सकें और उनको एक मेन स्ट्रीम में और सही डायरेक्शन में लेकर आ सकें। और जो भटके हुए पंजाब के यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, जिनको आज की डेट में गैंगस्टर्स का कई जगह वर्ड दिया गया, तो मैं ये चीज कहूंगा कि हमारे पंजाब के जो युवा है वो कोई भी गैंगस्टर नहीं है, और गैंगस्टर वर्ड जो है वो पंजाब का नहीं है। तो इसलिए मैं उन बच्चों को भी ये कहना चाहूंगा कि जो हम मतलब कि ये एक्सटोर्शंस के काम चल रहे हैं वो खत्म होने चाहिए, और ये भी पंजाब के ही वासी हैं। ये जो लोग हैं कुछ वो आपको गलत रास्ते पर लेकर आए हैं, और जो सही रास्ते पे आना चाहें वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या अपने कुछ भी जो अच्छे ऑफिसर्स हैं आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप मेन स्ट्रीम में आकर, और हम चाहेंगे जैसे आज मेरा पॉडकास्ट हो रहा है उनका भी पॉडकास्ट हो, वो भी अपना असल में बता सके यंगस्टर्स को कि गलत रास्ते के जो सिस्टम है वो हमेशा गलत ही होते हैं। तो इसलिए मैं अपने सभी पंजाब के यंगस्टर्स को यही कहूंगा कि आप हमेशा सही रास्ता चुनें, ताकि हम अपने पंजाब और अपने देश को आगे बढ़ा सकें। जय हिंद, जय भारत। Thank you.